Hello students, today again we are meeting with the same lesson. We are going to see the same lesson. This is our third part of the same lesson, that is the 12 months. Okay, so हमने last part में क्या देखा था कि स्ट्रॉबेरीज जो लेने के लिए कौन आई थी, मोकुला, और अब उसे क्या मिल गई थी, स्ट्रॉबेरीज मिल गई थी, है ना। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हुआ। ओके, June took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire shot up and it heated, melted the snow in a moment. The ground was all green. The trees were covered with leaves. The birds began to sing, and the forest was filled with all kinds of flowers. It was summer. The ground under the bushes was covered with white starlets. The starry blossoms were turning into the strawberries every minute. They rippled at once, and before Mokula had time to think, there were so many of them. They had looked through a red carpet had been spread on the ground. मतलब तुरंत उसे ऐसे लगा कि जैसे कि रेड कारपेट डाला हुआ है ग्राउंड पर. ओके, pick them at once, Mokula commanded June. जून मंथ ने क्या कहा मोकुला को कि तुरंत आप फटाफट ये उठा लो. मोकुला picked them joyfully till she had filled her apron full. Then she thanked the month with all her heart and scrambled merrily home. उसने शुक्रिया अदा किया किसका, जून मंथ का, और उसके हाथ उसका जो एप्रन था वो उसने सब पिकअप कर ली, उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज पूरा फिल होने तक, और उसने थैंक बोलकर बहुत ही खुशी खुशी वो अपने घर चली गई. Helena and the stepmother wondered when they had saw Mokula bringing the strawberries. Her apron was full of them. मतलब हेलेना और स्टेप मदर वापस सरप्राइज हो गए कि कैसे क्या मोकुला ने ये मौसम में स्ट्रॉबेरीज लेकर आई है, और उसके जो एप्रन था वो फुल देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए. Where did you pick them? asked Helena sulkily. There are plenty of them growing in the forest on the high mountain. हाँ बोले, बहुत ऊंचे माउंटेन पर ये बहुत सारे थे. That's why I brought from there. Helena took all the strawberries and ate them all up with her mother. They did not leave even a single one for Mokula. Helena और उसके मदर ने क्या किया, सारे के सारे स्ट्रॉबेरीज अकेले ही खा ली, एक भी स्ट्रॉबेरीज मोकुला को नहीं दी. On the third day, Helena ordered Mokula, go into the forest and get me some red apples. अभी थर्ड डे था, अब उन्होंने क्या सोचा कि अब इसे हम एप्पल्स, रेड एप्पल्स लेने के लिए भेजे. The stepmother caught hold of Mokula and without giving her the chance of speaking, pushed her out of the door and shut it after her. मतलब वो किसी न किसी बहाने उसे तकलीफ भी देना चाहते थे, तो आज उन्होंने क्या सोचा कि इसे क्यों ना हम एप्पल मंगाए, और उन्होंने उससे कोई वर्ड पूछने के पहले, वो कुछ बोले उसके पहले ही उसकी मदर ने उसे घर के बाहर धक्का मारकर निकाल दिया. Mokula went to the forest again, weeping bitterly, but she did not wander about this time. She ran straight to the top of the mountain. अब वो इधर उधर कहीं भटकी नहीं, रो तो रही थी, तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन वो अब कहीं पर भी भटकी नहीं, वो सीधा टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंच गई. कहाँ पर, जहां पर की फायर चल रही थी, बर्निंग हो रही थी, और 12 मंथ्स बैठे हुए थे. Where the big fire was burning and the 12 months were sitting around the fire. Please, kind sirs, help me. Great January nodded and asked her, what are you looking for today? अब वापस से जनवरी मंथ ने बोला, ठीक है आओ, और अब आज क्या लेने के लिए आए हो आप? I am looking of red apples. मैं आज रेड एप्पल्स देख रही हूँ. If I don't bring them, my sister and my mother will kill me. Again, she told that अगर मैं आज एप्पल्स नहीं लेकर गई तो मेरी मदर और मेरा बहन हेलेना ये दोनों भी मुझे मार डालेंगे.
टेल मी फादर, टेल मी प्लीज वेयर आई कैन फाइंड देम, प्लीज मुझे ये बताइए कि मैं ये कहाँ पर मिलेंगे मुझे। ग्रेट जनवरी रोज अप, he went over to one of the older months, it was September, एक older month जो था सितंबर, उसके पास गए और उन्होंने उसे रिक्वेस्ट की कि अब आप हायर सीट लो। He handed the club to him and said, brother, take the high seat. सितंबर मंथ में एप्पल्स आते हैं ना, इसलिए उन्होंने उसे कहा कि आप बैठ जाओ और सितंबर मंथ का जो दौर होता है, ड्यूरेशन होता है, वो स्टार्ट हो गया। Month September took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire began to burn with a red flame. The snow began to melt. But there was cold wind and sent the faded leaves down to the ground. It was autumn season. Okay, तो ये जो सीजन होता है वो कौन सा होता है? रेनी सीजन खत्म होकर विंटर सीजन की शुरुआत होती है, उसे बोलते हैं ऑटम सीजन। ओके, ना ही ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंड होती है उस मौसम में। Mokula saw just one apple tree and with red apples hanging high among its branches. एक ही एप्पल ट्री मोकुला ने देखा और बहुत सारे उसके ऊपर क्या लगे हुए थे? रेड कलर के एप्पल्स, बहुत हाई थे लेकिन वो ऊंचे ऊंचे थे। Say, shade the tree at once, Mokula commanded September. मतलब उस ट्री को आप शेड करो, क्यों? तो ताकि सारे एप्पल्स नीचे गिराए और आपको मिले। Right gladly, Mokula shook the tree. Shook the tree and first one apple fell down and then another. धीरे धीरे बहुत सारे एप्पल्स गिरने लगे। Now Mokula that enough, run home quickly. ठीक है बोली, ये बहुत हो गए, आप तुरंत घर पर चले जाओ। Shouted the month. Mokula obeyed at once. उन्होंने मोकुला ने तुरंत उनका सुना और वो वैसे ही करने लगी। She picked up the apple, thanked the month and all her heart and ran merrily home. ये सुनकर और ये वो खुश होकर वो उनको थैंक्स बोलकर तुरंत वो अपने घर चली गई। Helena's mother wondered when they saw Mokula bringing the two apples लाते हुए देखा और वो बहुत ही ज्यादा वंडर करने लगे कि ये कैसे हो सकता है। Where did you get them? asked Helena. कहाँ से लेकर आए आप ये? I found them in the forest on the high mountain. Forest में high mountain है, वहां से लेकर आई हूँ। Again she repeat the same answer. And why did not you bring more? दो ही क्यों लेकर आई? ज्यादा क्यों नहीं लेकर आए? Or did you eat them on the way home? और या आपने आधे खा लिए आते वक्त? Said Helena harshly. Alas, sister dear, I haven't even tested them. Sorry, लेकिन मैंने एक भी टेस्ट भी नहीं किया है। I shook the tree twice. 2 apples fell down and then wouldn't let me shake the tree again. They shouted to me to go straight home. Protested Mokula. और बेचारी बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, उसने अपना सारी सच्चाई बता दी कि नहीं, मैंने 2 बार शेक किया ट्री को और 2 एप्पल्स गिरे, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे शेक करने के लिए इजाजत ही नहीं दी, इस वजह से मैं 2 ही एप्पल्स लेकर आ पाई। तो अब इन लोगों के मन में आया कि ये कौन है जो उसे हेल्प कर रहे हैं। ये क्यूरियोसिटी हेलेना और उसके स्टेप मदर के पीछे होने लगी। May you be struck to death by lightning, said the wicked Helena, and began to eat the apple. It tasted so delicious that she told her mother she had never tasted anything so nice in all her life. The stepmother liked it too. When they had finished, they wanted some more. अब क्या हुआ? वो जो एप्पल्स थे वो बहुत ज्यादा टेस्टी थे। क्या? बहुत टेस्टी थे। अब उनको चाहत होने लगी कि क्यों ना हमें और एप्पल्स मिले इससे। वो बोलने लगे कि इतने डिलीशियस एप्पल्स मैंने हमारे लाइफ में कभी खाए ही नहीं थे। मदर गिव मी माय फॉर लेट्स गो टू द फॉरेस्ट आवरसेल्फ एंड ईट द एप्पल दैट रेड लिटिल रिच। मतलब जो एप्पल्स हमें इतने अच्छे लगे हैं, चलो हम भी बाहर जाते हैं और एप्पल्स लेकर आते हैं।
मेरा जो फर का जो कोट है जो ठंड से बचाने के लिए होता है वो मुझे ला दो, चलो हम लोग जाते हैं। Would eat them all up again to her way home. We will find the place all right, and I will shake them all down, however they shout at me. बोले ठीक है, मैं वो झाड़ ढूंढ कर ही लौटी और बहुत सारे एप्पल्स लेके आऊंगी, चाहे वो मुझे कितना भी शाउट करे मेरे ऊपर। Her mother agreed readily. तुरंत उसकी मदर जो थी वो राजी हो गई ये करने के लिए। They wrapped themselves in the fur coats and shawls and off they went to the forest. अब उन्होंने सारी तैयारी कर ली ठंड में बाहर जाने की, शॉल, फर कोट वो सब लेकर वो बाहर निकल पड़े। क्या लेने के लिए निकल पड़े? Yes, red apples. The snow lay deep and they wandered about for a long time. वह स्नो था और वो लोग बहुत देर तक वैंडर करने लगे, बहुत घूमने लगे। But at last they saw the top of the mountain. Top of the mountain पर उन्होंने भी fire देखी burning होते हुए। And the 12 months were sitting. They stepped up to the fire and stretched out their hands to the warm them. Without asking permission or speaking one polite word. ना ही उन्होंने परमिशन ली, ना ही पोलाइटली उन्होंने उनसे बात की। तुरंत वो उनके पास चले गए और क्या बोलने लगे? Why have you come here and what are you looking for? asked Great January crossly. उन्हें बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने परमिशन भी नहीं ली कि मैं अपने आप को वार्म करने के लिए यहाँ पर आ सकती हूँ क्या। वो तुरंत आगे जाकर वार्म करने लगे। तो जनवरी ने क्रॉसली पूछा, क्यों आए हो आप यहाँ पर, क्या लेने के लिए आए हो? गुस्से में बात की किसने? जनवरी ने। Why do you want to know, you old fool? तो उन्होंने बहुत ही, उनका पोलाइटनेस नहीं था, उन्होंने बहुत ही खराब तरीके से उनसे बात की कि आप कौन होते हो बोले मुझे बोलने वाले। You old fool man. बूढ़े, तू फुल है, तू अब मुझे ऐसे क्यों पूछ रहा है? Replied Helena angrily. It's no business of yours, said her mother. और मदर ने भी क्या कहा? तुझे कोई काम नहीं, ये आपका काम नहीं है मुझे पूछने का। Great January frowned and strung the club over his head. The sky grew dark in a moment. जनवरी ने क्या किया कि उन्होंने चाहा कि अब ये सब खत्म हो जाए और पूरी जो फायर थी वो पूरी लो हो गई और the sky grew dark in a moment. स्काई क्या हो गई? डार्क हो गई। The fire burned low. मतलब फायर जो थी वो पूरी कम होने लगी। The snow began to fall thick and then icy wind began to blow through the forest. Helena and her mother could not see one step in front of them. ऐसा सब मौसम हो गया कि वो उनके लिए अच्छा नहीं था और तुरंत सब जगह पर क्या हो गया? डार्कनेस हो गया। वो लोग आगे की कुछ जगह पे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि फायर भी लो हो गई थी, स्काई जो था वो पूरा डार्क हो गया था। ये काय की वजह से हुआ था? जनवरी मंथ को भी गुस्सा आया था क्योंकि उन लोगों ने उनसे बहुत बुरी तरह से बात की थी। They tried to find their way out, but the snow fell in a huge masses, and soon they were lost in it. वो लोग वहां से निकलना चाहते थे लेकिन तुरंत बहुत स्नो गिरने लगा और उसके अंदर वो लोग दब गए। At home, Morkula waited and yet Helena and her mother did not came back. मॉर्कुला बहुत देर तक राह देख रही थी लेकिन फिर भी वो दोनों आए नहीं। कौन? हेलेना और स्टेप मदर जो रेड एप्पल्स लेने के लिए गए थे। When she went to search for them, she found neither her mother and sister. मतलब जब मॉर्कुला गई उन्हें देखने के लिए, ना ही वो अपनी बहन को ढूंढ पाई और ना ही अपनी स्टेप मदर को। And nor the 12 months in the forest. 12 months भी नहीं मिले। At last she returned home sadly. आखिर में वो राह देख देख कर उन्हें ढूंढने गई लेकिन उसे कोई भी मिला नहीं और 12 मंथ्स भी नहीं मिले और वो बहुत ही सैडली घर पर रिटर्न आ गई। So good, Morkula inherited the cottage and the land around it. मतलब अब ये सारी जो जायदाद थी, कॉटेज उसकी, वो सब उसकी हो गई। And she married a kind husband and they both lived happily ever after. अब मॉर्कुला ये happily रहने लगी। So I hope you all have understood the lesson. See students, politeness जो होता है
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी से भी, कोई भी हो, चाहे कोई बुरा इंसान हो या किसी ने आपने से कुछ भी बात की है, तो आपने बहुत ही पोलाइट वे यूज करना चाहिए। अगर आप पोलाइट हो तो हर चीज पॉसिबल है, अदरवाइज एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके।